आज अपन करने हैं स्पेसिमेन 2 पेपर का पहला सम। हिल कंपनी। हिल कंपनी इज द पेरेंट कंपनी ऑफ अ ग्रुप. ऑल एंटिटीज इन द ग्रुप have a financial year end of 30th of September 16. The following exhibits available below provide information relevant to the question. Using Exhibit 1, explain with suitable calculations how the investment in Doyle Company should be dealt with in the consolidated financial statements for the year ended 30th of September 16. Calculations भी करने हैं, so that's good. Acquisition की disposal लिखना. Investment in Doyle, okay. For the year ended 30th of September 16, ठीक है. तो मैंने उसको कब एक्वायर किया था? ऑन 1 October 14. He'll purchase 60% of ordinary shares of Doyle Company. At this date, the fair value of Doyle's identifiable assets was 510 million, 510 million. The non-controlling interest acquisition was 215. Goodwill arising on Doyle was 50 million and had not been impaired prior to the date of disposal. So for the year end of 30th of September 15, the cash consideration would have been, तो अपने को सबसे पहले ना यहाँ पे रिवर्स कैलकुलेशन अप्लाई करना है. जो अपने को यहाँ पे रिवर्स कैलकुलेशन अप्लाई करना है ना, वो ऐसा करना है कि सबसे पहली बात तो कंसिडरेशन जो होगा अपना बैलेंसिंग फिगर, उसके नीचे अपने को ने नेट एसेट्स एट एक्विजिशन दिया हुआ है, एनसीआई एट फेयर वैल्यू वो दिया हुआ है, और अपने को उन्होंने गुडविल भी दिया हुआ है जो इम्पेयर नहीं हुआ है देयर एसेट्स, व्हिच इज गुड. यहाँ पे मैं वैल्यूज लिखने जाऊंगा तो देखो, कंसिडरेशन तो वो मतलब बैलेंसिंग फिगर है. नेट एसेट हो गया 510, 215. ये गुडविल हो गया 50 का, तो अपन रिवर्स कैलकुलेशन मारेंगे. 50 प्लस 510 माइनस 215, तो मेरे को कंसिडरेशन मिलता है 345 का. तो दिस इज समथिंग विच विल राइट इट डाउन कि 345 का अपने को कंसिडरेशन मिला है. ठीक है, बाय बाय द हेल्प ऑफ रिवर्स कैलकुलेशन. उसके बाद ऑन 1 April 16, मतलब इसी सालाना के बीच में, Hill Company disposed of 20% holding in the shares of Doyle for cash consideration I for 140, losing control. At this date, the net assets of Doyle Company, excluding goodwill, were carried under consolidated financial statements at 510. From 1 April 16, Hill Company's ability to appoint two of the six members of Doyle Company. The fair value of Hill Company's 40% shareholding was 300 at that date. The oil company reported a profit for the year ended 30th of September 16 at 123. फिर देखो, सबसे पहले तो अपन ऐसा लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू IFRS 10 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऊपर मतलब ये जो अपन ने कैलकुलेशन किया ना उसके भी ऊपर अपन लिखेंगे कि an investor controls an investee when the investor has power over the investee. Investor is exposed or has right to significant returns from the investee, or variable returns from the investee. Investor has the ability to affect those returns with its power over the investee. ऐसा लिखेंगे. अभी in this case, on 1 April 16, when 20% of the shareholding was disposed of Doyle, Doyle lost the control, and thus now the accounting treatment will not take place in accordance with IFRS 10, but would rather take place in accordance with IAS 28, investment in associates and joint ventures, wherein the equity method of accounting will be used, wherein only a single line item, which is investment in associate will be shown in the statement of financial position, and
a single line item will be shown, which is the share of profits in and associated in the statement of profit and loss. However, uh, Hill Company disposed of 20% of the shares in Doyle on 1st of April 16. That means October, November, December, Jan, Feb, March. For 6 months, it was a subsidiary, and therefore the 6 months subsidiary figures should be consolidated in this 6 months. 6 months के प्रॉफिट एंड लॉस के जो फिगर्स होंगे दैट शुड बी कंसोलिडेटेड इन द consolidated financial statements along with the share in profit of associate being shown. ठीक है. Now we have to calculate the the goodwill that has been the goodwill on disposal अभी भी अपने को calculate करना है. So how will we calculate that? First of all, what we will do is hmm, what we will do is एक ना टेबल बना देता हूँ मैं यहाँ पर एक और. अरे नहीं. यहाँ पे कैश प्रोसीड्स रिसीव्ड फॉर पार्ट सेल. मैं ऐसा भी लिख सकते हैं कि दिस इज स्टेप डिस्पोजल वेयर ओनली अ पार्ट ऑफ द डिस्पोजल है, ओनली अ पार्ट ऑफ द होल्डिंग हैज बीन डिस्पोज्ड ऑफ एंड नॉट द एंटायर शेयर होल्डिंग. ये भी लिख सकते हैं. देखो अभी कैश प्रोसीड रिसीव्ड फॉर दैट पार्ट ये अपन ने लिख दिया. फेयर वैल्यू ऑफ द हेल्ड शेयर होल्डिंग. फिर आता है गुडविल एट डिस्पोजल, नेट एसेट्स एट डिस्पोजल, फिर एनसीआई एट डिस्पोजल. फिर ये सब अपने को गेन या फिर लॉस देगा जो अपने को रिकॉर्ड करना है. रिलेट टू गेन और लॉस. गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल. तो ये गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल अपने को मिल जाएगा. अभी सबसे पहले तो कैश प्रोसीड्स रिसीव्ड वो कितना है? 140 million. अभी 140 million. फेयर वैल्यू ऑफ हेल्थ शेयर्स वो कितना है? 300. तो 440 का. अभी अपने को ढूंढना है गुडविल और डिस्पोजल. वो अपने पास है क्या? अच्छा देखो गुडविल अराइजिंग ऑन एक्विजिशन वाज 50 बट इट वाज नॉट इम्पेयर्ड. तो यही अपना गुडविल एट डिस्पोजल बन जाएगा. फिर आता है नेट एसेट्स एट डिस्पोजल. नेट एसेट्स एट डिस्पोजल इज 590. वो एक चीज अपने को मिल गई. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट एनसीआई एट डिस्पोजल. ये एनसीआई एट डिस्पोजल कैसे मिलेगा? व्हाट वी कैन डू इज फॉर एनसीआई एट डिस्पोजल, फॉर कैलकुलेटिंग एनसीआई एट डिस्पोजल. एक तो है कि अपना जो एनसीआई एट एक्विजिशन था वो कितना था? 215. तो मिनिमम वो तो आएगा ही आएगा. तो इस पे प्लस होगा. प्लस क्या होगा? इट इज प्रोपोर्शनल गुडविल ऐसा है क्या? नॉन फेयर वैल्यू. अच्छा तो ये जो एनसीआई है दैट इज मेजर्ड एट फेयर वैल्यू. भी वी कैन आइदर डू वन थिंग. वी कैन एक्चुअली 123 का 20% नहीं 6/12. 123 का 6/12 नहीं that's not right. इट वुड बी बेटर कि अपन नेट एसेट्स का जो इंक्रीज हुआ है ना
देखो, जो जो नेट एसेट्स में इंक्रीज हुआ है 510 से 590 का 80%, वो 80 का अपन अभी यहाँ पर 20% ले ले, दैट बी 16, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। नहीं, 20% क्यों, एक मिनट, एनसीआई मेरा कितना है? एनसीआई का रेट 40% था ना इसके पहले, तो इसलिए 0.4, तो आता है कुछ 32 आता है। तो 215 प्लस 32, 247। सो अभी 590 प्लस 50 माइनस 247 गिव अस 393। तो अपने को आता है गेन, गेन ऑफ 47। एक बार चेक कर लेते हैं कि ये सही है कि नहीं है। यहाँ तक सही, तो फिर अपन अपन फिर इसी चीज को एक्सप्लेन कर देंगे। ये देखो, गेन ऑफ आ गया अपने को 47। परफेक्ट। तो अभी यही सब अपने को बस नीचे इन थ्योरी भी एक्सप्लेन करना है कि अपन ने क्यों ऐसा किया। सो व्हेन द स्टेप डिस्पोजल टेकिंग प्लेस, तो अपन ऐसा 20% ले लेते हैं, ठीक है। ऐसा सब अपन करते हैं। उसके बाद देर इज ऑल्सो वन थिंग, उन्होंने अपने को प्रॉफिट्स दिए हुए हैं। तो ये जो प्रॉफिट्स हैं, अभी अपने को इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इस प्रॉफिट का भी शेयर दिखाना है। तो 123 इंटू 6/12, क्योंकि हाँ हमने 6 महीने बाद बेचा था, तो आता है 21 पॉइंट नहीं 61.5 आएगा। 61.5 का अभी अपना होल्डिंग कितना है अभी, हाउ मच इज आवर शेयर इन दैट, है ना। तो अपना शेयर तो अभी सिर्फ 40% ही है, क्योंकि अभी अपना जो एसोसिएट का शेयर होल्डिंग है दैट इज 40%। सो 61.5 का 0.4% विल गिव अस 24.6। तो अपने को 24.6 का प्रॉफिट वहां पर शो करना पड़ेगा। ये देखो 24.6, एक मिनट क्या है, हाँ ये रहा। दिस मीन्स दैट ग्रुप रिकॉग्नाइज द शेयर ऑफ एन एसोसिएट्स प्रॉफिट ऑफ 224.6। Oh, they have also said कि as at the reporting date the associate will have a carried, हाँ, तो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स जो है वो अभी कितने पे कैरी होगा इन द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो वो कैरी होगा एट द अमाउंट ऑफ 300, विच इज द फेयर वैल्यू ऑफ 40%, plus the shareholding, which is 20, plus the share in profit, which is 24.6. So that gives us 324.6. That is how we get this one. ठीक है। Using the pre-populated spreadsheet response and using exhibits 1 and 2, update the draft extracts of the consolidated statement of cash flows to adjust for the disposal of Doyle shares and to amend for any errors, omissions made by the directors. Okay. तो देखो ये ड्राफ्ट है। हम्म, इसमें 1 एंड 2 बोला है ना, तो वन में तो अपन ने सिर्फ वो डिस्पोजल का किया था, तो वो सारी चीजें इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ही जाएंगी। जस्ट अ सेकेंड। हम्म। तो व्हाट वी डू इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में गेन ऑन डिस्पोजल जो रहता है, ये अपन माइनस करते हैं गेन ऑन डिस्पोजल। सो यहाँ से गेन ऑन डिस्पोजल माइनस हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ सब्सिडियरी, वो अपने को करना है, माइनस करना है। हाउ कैन आई रिड्यूस दिस? ये नॉन डिस्पोजल ऑफ सब्सिडियरी माइनस होगा, तो अपने को -47 करना है। ये तो 100% है अपने यहाँ पे। शेयर इन प्रॉफिट ऑफ एसोसिएट भी यहाँ पे है, तो वो भी अपन माइनस ही करते हैं। शेयर इन प्रॉफिट ऑफ एसोसिएट, तो वो अपने को 24.6 आया था, वो माइनस करना है। गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ सब्सिडरी अपने को 47 माइनस करना है। तो ये दो चीजें तो हो गई। उसके बाद फाइंडिंग एनीथिंग एल्स। ठीक है, नाउ विल जस्ट कैलकुलेट अभी। अभी सम कर लेते हैं, अभी ये एग्जिबिट 2 करना पड़ेगा।
जरा एक बार ना ये खोल लेता हूँ एक्सेल। एक्स्ट्रास ऑफ कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ हिल ग्रुप और देखो 2015 में 421.422 था, और 2016 में 4,953 हो गया। अभी इन्होंने नीचे यहाँ पे ना कुछ कुछ चीजें दी हुई है, देखो कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट नेट एसेट्स ऑफ डॉयल ऑन 1 April 2016। तो ये सारी चीजें अभी अपने को यहाँ पर इक्वली एडजस्ट करती जानी है। The group's financial controller has produced draft extracts for the consolidated statement of cash flows and has not yet considered the impact of the disposal of Doyle Exhibit 1. There are some errors. All other consolidated financial statements have correctly prepared. The draft extracts have been included in the spreadsheet response option. The draft extracts have been included in the spreadsheet option. तो ये सारी चीजें already included है. The statement of cash flows figures for inventories, trade and other receivables, and trade and other payables and property, plant and equipment have been calculated by considering only the movement in the balances between the consolidated statement of financial position from नहीं, तो ये तो अपने नहीं कैलकुलेट किया, तो ये सारी चीजें नहीं एडेड है, तो आई डोंट नो व्हाई दे हैव सेड कि ये सारी चीजें एडेड है ऑलरेडी। आई डोंट नो। द हिल कंपनी exchanged property plant and equipment with one of its suppliers on 1st of November 15. It estimated the fair value of both assets exchanged was 50 million, although the carrying amount of the assets transferred by Hill was 45 million at the date of transfer. There were no other disposal of non-current assets by group during the year other than disposal of Doyle. The group also acquired property, plant and equipment during the year for cash. The depreciation charge for the group अच्छा 775.1, तो ये depreciation charge ऐड है क्या, नहीं ऐड है? तो depreciation charge अपने को यहाँ पर एक ऐड करना पड़ेगा इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और एक चीज depreciation, share in profits of associate, ये तीन चीजें अब तक अपने को बहुत सही से मिली है। बट नाउ यू हैव टू कैलकुलेट दिस बैलेंसेस नाउ, चलो ये तो करना ही है ना। पहले काम करता हूँ मैं, सारे बराबर से ट्रेड 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 रिसीवेबल्स वगैरह किए गए हैं कि नहीं, बस वो चेक करता हूँ, क्योंकि इन्होंने बोला कि बस 2015 से 2016 में जो डिफरेंसेस आए हैं बस वही कैलकुलेट किया गया है, मतलब वही इंक्लूडेड है। बाकी कोई चीजें इन्होंने ऐड ही नहीं की गई हैं, बस वो चेक करना पड़ेगा। देखो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो फिगर्स फॉर इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स एंड ट्रेड पेबल एंड प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हैव बीन कैलकुलेटेड बाय कंसीडरिंग ओनली द मूवमेंट इन बैलेंसेस बिटवीन द कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन फ्रॉम 15 to 16। मतलब इस इन चीजों का कोई इफेक्ट दिया ही नहीं गया है। तो अगर इन चीजों का कोई इफेक्ट दिया ही नहीं है तो ये सब चीजें ऐड बैक करनी है। तो अगर ऐड कर देखो, ट्रेड ट्रेड रिसीवेबल्स अगर बढ़ता है तो अपन अपने कैश में तो वो चीज नेगेटिव में दिखाते हैं। सेम गोज फॉर सेम गोज फॉर इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्री ऊपर है सॉरी। शेयर सेम टू सेम अप्लाइज फॉर इन्वेंट्रीज एज वेल। तो ये सारी चीजें अपन थ्योरी में वहां पे लिखेंगे कि बिकॉज दीज मूवमेंट्स आर नॉट इंक्लूडेड, अभी अपन इन चीजों को ऐड इंक्लूड कर रहे हैं। अभी ट्रेड रिसीवेबल्स 224 है। उन्होंने ट्रेड रिसीवेबल्स नेम का ना उन्होंने ऐसा इसको नेगेटिव में डाल दिया है, तो अब मैं ये सोच रहा हूँ कि इसको ऐड बैक करना है कि माइनस करना है, बिकॉज ट्रेड रिसीवेबल्स में तो सीधा चलता है। अगर ट्रेड रिसीवेबल्स माइनस हुआ है मतलब मैंने ट्रेड रिसीवेबल्स भरे हैं, तो यानी कि मेरा कैश बैलेंस डिक्रीज हुआ है एक्चुअली। तो इसको भी माइनस करना है, सो इवन दिस फिगर आई विल माइनस 124.6 को मैं माइनस ही रखूंगा फिलहाल के लिए। बाद में चेक कर लेंगे। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स अगर इंक्लूड नहीं किए तो उसको इंक्लूड करना है।
ट्रेड रिसीवेबल्स का उन्होंने वैसे नहीं दिया जैसे मैंने सोचा था, तो इसको मैं पीपीई का ही नाम देता हूँ, क्योंकि पीपीई में उन्होंने वैसे ही दिया 2015 का बैलेंस 912.5, सॉरी 4219.5, 4953। अभी यहाँ मैंने कोई एक चीज ऐड हुई है मेरी यहाँ पर, ये देखो 311.9, वो है 311.9। लेकिन हिल कंपनी एक्सचेंज प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट विथ वन ऑफ इट्स सप्लायर्स ऑन 1st of November 15. It estimated the fair value of both assets exchanged was 50 million, although the carrying amount of the asset transferred by Hill was 5 million, sorry 45 million। मतलब हमारे पास 5 मिलियन का ज्यादा माल आया, और हमारे पास 5 मिलियन का ज्यादा माल आया तो हमने पैसा लिया होगा, दिया होगा। सो मतलब अभी अपने को क्या करना है, दिस माइनस दिस, तो मतलब 416.6 जो मैंने परचेज किया होगा, तो ये चीज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जानी चाहिए, परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इन एज अ नेगेटिव बैलेंस। और ये कैश बैलेंस बढ़ा है तो इट विल, ये मुझे थोड़ा नहीं आया समझ में कि 20.9 को मैं कहाँ डालूंगा, बिकॉज ये जस्ट मेरे को डायरेक्टली कैश ही मिला है। तो ये बस मेरे को एक बार चेक करना है, बाकी सारे तो हो गया आई गेस। डेप्रिसिएशन चार्ज को अपन ने वापस एक बार ऐड बैक किया एज करेक्टली डन। एनसीआई का कुछ तो आता है, जस्ट अ सेकेंड, पेरेंट पेड टू एनसीआई। एक्चुअली मैं क्या सोच रहा हूँ कि हमने सब्सिडरी को बेचा था, तो उसका भी कहीं पर तो जाता है ना, क्योंकि उससे भी तो हमें कैश ही मिला है। तो हम जस्ट फाइंडिंग कि वो कहाँ पर जाता है, इसलिए वो नहीं मिल रहा। देखो अगर हमने कैश प्रोसीड्स अगर हमको अंदर आए हैं सब्सिडरी को बेच के, तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होना चाहिए। तो ये 140 million will go to investing activity, but this will go as a positive figure 140 million, बिकॉज हमें सब्सिडी को बेच के पैसा अंदर आया। फेयर वैल्यू इंक्रीज वो ठीक है, क्योंकि वो कैश पेमेंट था ही नहीं, तो वो नहीं आया कहीं पर भी। सो दिस इज माई आंसर करेंटली। ये चार पांच चीजें तो एकदम सीधी सादी सिंपल थी। वर्किंग कैपिटल में बिकॉज दे हैव सेड कि कुछ चीजें ऐड नहीं की गई है, तो वो चीजें अपन ऐड बैक करेंगे, इसमें कंसिडर करेंगे। एंड पीपी में जो परचेज दिखाया गया है वो वैसे का वैसा शो होगा। अच्छा एक मिनट, हमने ऑलरेडी पीपीपी में ना 733.8 दिखाया हुआ था, लेकिन अपने को 441.6 416.6 जो अपने को मिला है, सो दे विल दिस बैलेंस डिक्रीज नाउ एंड शुड डिक्रीज इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। क्योंकि देखो इसने क्या किया है, इसने बस इन दोनों का ये डिफरेंस लिया हुआ है। दे हैव नॉट कंसिडर्ड दिस अबव बैलेंस एंड फेयर वैल्यू इंक्रीज। तो अभी ना ये चीज डिक्रीज होगी, दिस थिंग विल डिक्रीज टू 416.6 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एक बार चेक कर लेते हैं। तो डेप्रिसिएशन वैसे का वैसा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो अपने को पता ही था, प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल ऑफ डॉयल परफेक्ट, प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल ऑफ पीपीई, ओके। ये चीज वी हैव मिस्टेकन, ये वाला बराबर है। इंक्रीज इन इन्वेंट्री एज वी सेड, एक मिनट, ये अपन ने इंक्रीज किया है, ओके। हाँ सो व्हाट डिड वी डू, हाँ तो अपन ने माइनस किया राइट, सो माइनस ना आते देखो ये चीज अपन ने ब्रैकेट में डाली, और ये चीज ऑलरेडी ब्रैकेट में थी, सो दैट्स व्हाई ये वाला अपने को आ गया 1042। इट्स बेसिकली लाइक दिस कि ये किसी और मतलब ये कैरिंग अमाउंट ऑफ डॉयल कंपनी था। ये बस अपन ने अपने बुक्स में उस चीज को ऐड किया हुआ है, अपने सब्सिडरी के जो भी माल था वो हमने सिर्फ हमारे बुक्स में ऐड बैक किया हुआ है। ये सही है, ये सही है, ये भी सही है। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन में सिर्फ ये 5 मिलियन में हमने थोड़ा घान किया है। इनकम टैक्सेस पे ये दोनों चीजें शायद सेम ही है ना जो ऊपर दी गई थी, हाँ ये दोनों चीजें तो सेम ही है। इनकम टैक्सेस पेड
फिर परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, ओके, दिस थिंग यू मे हैव मिस्टेकन, देखो यहाँ पे, और कहाँ गया, यहाँ पे, ये दो चीजें वी हैव मिस्टेकन। प्रोसीड फ्रॉम डिस्पोजल, देखो 140 का कैश प्रोसीड, तो जैसे मैंने बोला था कि वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से मिला, वो अपन ने ऐड किया। 20.9, 20.9, व्हाट इज द सेकंड, वो ये क्या था, कैश इन सब्सिडरी डिस्पोज, सब्सिडरी ऑन डिस्पोजल। नहीं, ये वाला नहीं समझा। 20.9, ये दिस यू हैव टू चेक। 47 बराबर है। हाँ, ये देखो, पीपी का अपन का कैलकुलेशन देख लेते हैं उन्होंने कैसे किया है। ये देखो, पीपी डॉयल एट द डेट ऑफ डिस्पोजल 311.9, depreciate, okay, they have charged depreciation on this figure, ओके 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 ओके। तो वो एसेट से माइनस करना है, वो जो डेप्रिसिएशन है वो अपने को बस एसेट के फिगर में से माइनस करना है। सो व्हाट वी विल गेट इज, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, डेप्रिसिएशन 775.1 is what they have, uh, जब 45 का डिस्पोजल हो गया, 50 का उन्होंने सी, ये उन्होंने 50 और 45 ऐसा लिखा हुआ है, मैंने बस उसको नेट नेट इफेक्ट 5 का दिया हुआ है। एंड पीपी ऑफ डॉयल एट द डेट ऑफ डिस्पोजल, तो पीपी एट द डेट ऑफ डिस्पोजल उन्होंने माइनस किया हुआ है फ्रॉम दिस फिगर, फ्रॉम द ओपनिंग बैलेंस इटसेल्फ। तो वंस दे माइनस दिस फिगर, दे विल गेट, वी विल ऑल्सो गेट 181.5.5। तो उन्होंने गेन ऑन डिस्पोजल, बिकॉज अपने को 50 माइनस 45 करके वो 5 का गेन हुआ, सो दे हैव जस्ट जस्ट रिकॉर्डेड दिस 5 का गेन ऊपर यहाँ पे। एंड दिस परचेज ऑफ प्रॉपर्टी में उन्होंने सिर्फ यहाँ पर जो है ये चीज माइनस में डाली हुई है। सो बिकॉज ऑफ दिस इनको क्लोजिंग फिगर 1815.8 मिल गया, तो इन्होंने बस यहाँ पे उस चीज का बैलेंसिंग फिगर लिखा हुआ है 1082 करके, चीज ओके। पीपी ऑफ डॉयल एट द डेट ऑफ डिस्पोजल, तो बेसिकली वी आर डी रिकॉग्नाइजिंग ऑल द थिंग्स। एक्चुअली अपन ने हर चीज को देखोगे तो माइनस ही किया है। Like if we just see, we have reduced actually everything. We have reduced inventories, trade receivables, payables को अपन ने ऐड बैक किया, मतलब अपन ने अपने अपने liabilities को शो किया हुआ है। फिर अपन ने यहाँ पर पीपी में भी माइनस किया हुआ है, सो वी हैव टू माइनस जब ये अभी डिस्पोजल होता है तभी। एंड दिस 20.9 जो ये था ना, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जो मैंने बोला था कि ये कहाँ से, लाइक ये कहाँ पर शो होगा मेरे को, मेरे को नहीं पता। तो दे हैव रिड्यूस्ड इट फ्रॉम हियर, प्रोसीड्स ऑन डिस्पोजल ऑफ डॉयल, तो उन्होंने वो चीज को यहाँ यहाँ से ही माइनस कर दिया, कैश और कैश इक्विवेलेंट, बिकॉज अभी अपन वो सब्सिडी को मतलब डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। सो बिकॉज अपन उस चीज को डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, लाइक उसका कैश अपने बुक्स में से जाएगा, सो दैट्स व्हाई दे हैव रिड्यूस्ड इट फ्रॉम देयर। सेम थिंग्स गोस फॉर पीपीई, सेम शिट गोस फॉर इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स एक्सेट्रा। ठीक है। Next question. Using Exhibit 3, evaluate the proposed treatment of Hill Company's deferred tax asset. Deferred tax asset. Hill Company has made a loss in the year ended 30th of September 16 in its separate financial statements as well as in the previous two financial years. In the consolidated statement of financial position, it proposes to recognize that a deferred tax asset in respect of carry forward unused tax losses. These losses cannot be surrendered to another group companies for unused tax losses. These losses cannot be sent. ठीक है. On 30th of September 16, Hill Company breached a covenant attached to the bank loan which is due for repayment in 2019.
The loan agreement states that the breach of loan covenants entitles the bank to demand immediate repayment of the loan. Hill Company and its subsidiaries do not have sufficient liquid assets to repay the loan in full. Hill Company has produced a business plan which forecasts significant improvement in its financial situation over the next 3 years as a result of launch of new products which are currently being developed. So what happens is when there are unused tax losses, a deferred tax asset can be recognized for the unused tax losses if it is probable that the future profits if it is probable that there will be future profits being incurred by the company, and thus the deferred tax asset should be recognized for the same amount as much as the probable future losses, probable future profits, उतना ही अपने को deferred tax asset recognize करना चाहिए. However, the presence of current loss in the year 2000 for the year ended 31st of September 2016 itself is an indication or an evidence that it will be difficult to generate profits in the near future. Thus, thus it should be looked upon that whether these losses were one-off losses or whether these losses uh, have incurred in the normal day-to-day business operations. If they're from business operations, then the profits, then the future profits are still a question mark. However, one-off costs such as restructuring cost, etc., can एक्चुअली इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये 4 मार्क के लिए ही है. हैव टू कवर लोन ऑल्सो उसके बाद. तो उसके बाद द ब्रीच ऑफ लोन कोवेनेंट. हाँ, on 30th of September 16, Hill Company breached a covenant attached to a bank loan which is due for repayment in 2019. This is an indication that there will be a cash outflow and there will be a decrease in the profits in the near future as well. Thus the presence of profits is still a question mark. Because of this breach of covenants, uh, because of this breach of covenants, the profits would reduce. अभी यही सब चीजें एक बार फिर से लिख के आगे चल के, though Hill Company has produced a business plan which forecasts significant improvement in its financial situation over the next 3 years, but still the products are still being developed and are not yet ready for its intended sale, and thus it is a long period of time in order to determine that whether these products will be successful or not and whether Hill Company would be able to generate profits or no. So, because of all these scenarios into picture, we can say that a deferred tax asset cannot be recognized, that Hill Company cannot recognize a deferred tax asset for the unused tax losses that it has incurred. बस इतना अपन लिख देंगे. Just a second, मैं अच्छा ठीक है रब कर दिया. आगे नीचे जाता हूँ मैं अभी. According to IS 12 income tax, an entity should recognize a deferred tax asset in respect of carry forward unused losses to the extent that it is possible. It is probable that the future taxable profit will be available against which the losses can be utilized. IAS 12 stresses that the existence of unused losses is a strong evidence here that the future taxable profit may not be available. For this reason, convincing evidence is required about the existence of future taxable profits. IAS 12 states that, तो मैं खाली profits बोल रहा था लेकिन यहाँ पे taxable profits बोलना था. IAS 12 states that entities should consider whether tax losses result from identifiable causes which are unlikely to recur. Hill Company can now has now made losses in 3 consecutive financial years, and therefore sufficient doubt exists about the likelihood of the future profits being generated. Although Hill Company is forecasting an improvement in its trading performance, this is a result of a new product which are currently under development. It will be difficult to reliably forecast the performance of these products. More emphasis should be placed on the performance of existing products and existing customers when assessing the likelihood of the future trading profits. Finally,
Hill company breached a bank loan covenant and some uncertainty exists about its ability to continue as a going concern. ये देखो, तो यहाँ पे डाउट है गोइंग कंसर्न को लेके ही, तो वो मतलब कोवेनेंट पे करना के वजह से देयर इज अ सिग्निफिकेंट डाउट ओवर वेदर हम प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे कि नहीं. This again has placed doubts on the likelihood of future profits and suggests that recognition of deferred tax asset for unused tax losses would be inappropriate. Based on the above, it would seem that Hill Company would be incorrect to recognize a deferred tax asset in respect of the unused tax losses. Perfect. Using Exhibit 4, discuss with suitable calculations how the convertible bond should be dealt with in the consolidated financial statements for the year ended 30th of September 17. कन्वर्टेबल बॉन्ड को डील कैसे करना है? ओके, कितने 6 मार्क्स के लिए है ना? A convertible, according to IFRS 9, financial instruments, a convertible bond is a compound instrument. A compound instrument is an instrument that carries the characteristics of both a financial liability and also an equity instrument. A financial liability is a contractual obligation to deliver cash or cash equivalents to another company or entity, whereas an equity instrument is a residual interest in the net assets of the entity, that is after the deduction of liabilities, the assets minus liabilities करने के बाद. In the current scenario, we can see that Hill Company issued a convertible bond at a par value of 20 million. This bond is redeemable. अभी सबसे पहली बात तो whether this should be measured at P&L या amortized cost वो देखना जरूरी है. If it is measured at amortized cost, then the transaction cost can be reduced from the क्या बोलते हैं, from the value itself, um, from the carrying amount itself. लेकिन यहाँ पे transaction cost का जिक्र नहीं हुआ है, तो it's okay. Yes. Bond holders can instead opt for conversion in the form of fixed number of shares or in Hill Company. Interest on the bond is payable at the rate of 4%. Interest rate on similar debt without conversion option is 10%. Interest on bond is payable in 4% in a year. Okay. So what we will do is the present value, we have to calculate the present value of the repayments that have to be made. So we can say that as the interest on bond is payable at 4% in arrears, the amount payable would be 8 lakhs. ठीक है, 8 lakhs. और यहाँ पर बिकॉज इट इज पेबल, मतलब 20 million अपने को उसके सेकेंड में पे करना है, सो दैट वुड बी 208 lakhs. मतलब वो अपने को रीपे करना है ये सेकेंड ईयर में ना, ऐसा. तो 8 lakhs इंटू 208 lakhs मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय विच प्रेजेंट वैल्यू रेट, अभी अपने को वही डिटरमाइन करना है, विच प्रेजेंट वैल्यू रेट. यार और कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी है यहाँ पे. अभी यहाँ पे इंटरेस्टेड ऑन सिमिलर डेट इंस्ट्रूमेंट विदाउट कन्वर्जन ऑफ ऑप्शन दिया हुआ है. विदाउट कन्वर्जन ऑप्शन में मैं कैसे लगा सकता हूँ ना, क्योंकि यहाँ पे तो मेरे पास कन्वर्जन ऑप्शन है. सो आई थिंक 5% यूज करना रहेगा, लेकिन 5% के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी गई है. हम्म. आई हैव टू चेक दिस कि वेदर इट इज 5% और 10%. यार इट इज 10% ओनली. इट इज 10%. दे हैव यूज 10% ओनली. इंटरेस्टेड ऑन सिमिलर डेट इंस्ट्रूमेंट विदाउट कन्वर्जन. तो यहाँ पर अपन जो है 10% यूज करते हैं, 0.909. मतलब वी कैन से दैट जब अपने को इंटरेस्टेड ऑन सिमिलर डेट इंस्ट्रूमेंट विदाउट कन्वर्जन ऑप्शन दिया जाएगा इन कन्वर्टेबल बॉन्ड, वी कैन यूज इट. ऐसा. सो 0.826. तो इन दोनों का वैल्यू ऐसा ऐसा करके अपने को मिलेगा. सो 8 lakhs इंटू 0.909, तो वो मुझे देगा
727200 और यहाँ पे 208 8 लाख। एक मिनट ना। अभी फॉर 208 lakhs व्हाट आई विल डू इज रेट ऑफ 0.826 में यूज करूंगा, तो वो मुझे देगा 17180800 प्लस करूंगा 727200 के साथ, तो मुझे आएगा 17908000। तो इन सिंपल टर्म्स मेरे को मिलता है 17,908। ठीक है, मैं इतना ये जीरो जीरो को थोड़ा हटा देता हूँ। सो माई लाइबिलिटी इज 17,908। मेरा टोटल बॉन्ड का वैल्यू था 20,000, तो मेरा जो इक्विटी कंपोनेंट हो गया वो हो जाएगा 2092। सो ये अपन पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि द कि now the repayment options will be brought back to the present value, and when they will be brought back to the present value, we will sum them up and find the value of the liability. Once we have found out the liability component, we will reduce that liability component from the total liability option, मतलब reduce that financial liability from the total liability option, and we will get the equity component of the part. तो ये देखते हैं अपन अभी यहाँ पे। Hill Company has issued compound instrument because the bond has characteristics of both a financial liability and obligation to repay the cash, and equity obligation to issue fixed number of Hill Company's own shares. IAS 32 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंटेशन, ओ ये भी अपने को मतलब बोलना चाहिए था कि अकॉर्डिंग टू IAS 32 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंटेशन वी रिक्वायर अ स्प्लिट दैट हैज बीन मेड between the financial liability and the equity component, because that's how IAS 32 expects us for the presentation. फिर इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि योर लायबिलिटी कंपोनेंट मेजर्ड एज अ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश रीपेमेंट्स discounted using the market rate on non-convertible bonds, and equity component the obligation to issue fixed number of shares measured at the residual amount। तो ये अपन ने बेसिकली उन दोनों का जो डेफिनेशन बताया था वैसा ही बताना है। ये देखो इनको मिला 17.91, अपने को मिला था 17,908, विच इज फाइन। एंड देन ये देखो इनको ये लायबिलिटी कंपोनेंट मिल गया, तो इनको ये इक्विटी कंपोनेंट भी मिल गया। देन दे हैव गॉट वन स्टेप फर्दर, तो फिर इन्होंने क्या किया, इस चीज को फिर से इन्होंने कैलकुलेट किया है कि अकॉर्डिंग टू amortized कॉस्ट मेथड, अगर 17,908 होगा तो इसके ऊपर 10% 17,908, एंड देन इसके ऊपर 4% ऑन 20 million, तो वो आएगा 800। एंड जब वो सब करने के बाद जो भी इनको फिगर आएगी बाहर, तो वो इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है 18.9। तो द फाइनेंस कॉस्ट टू बी रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस विच इज 1.8, तो ये वाली फिगर 1.8 की फाइनेंस कॉस्ट में जाएगी। लायबिलिटी कंपोनेंट ये 18.9, ये बस वहाँ पे कैरिंग वैल्यू शो होगा। एंड इंटरेस्ट पेड 0.8 इज अ कैश आउटफ्लो प्रेजेंटेड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इन द सेक्शन ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। तो ये 800 जो है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जाएगा कैश फ्लो के। वी वर एबल टू सॉल्व इट टिल हियर। वो लोग एक स्टेप आगे जाके एमोटाइज कॉस्ट भी उन्होंने कैलकुलेट किया है।